جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. اب اس کے بعد ہوگا کیا ملکی سیاست میں؟ مبشر میر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ موجود ہیں. مبشر صاحب بتائیے گا، ایک تو چیز ہم نے ڈسکس کر لی کہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز جاری ہوئی جس میں خان صاحب کو بتا دیا گیا کہ آپ بے بنیاد الزامات نہ لگائیں، اور آج خان صاحب کو نیب کیس میں، کیونکہ میں دوبارہ کہہ رہی ہوں نیب کیس میں جو ہے وہ انہیں گرفتار کر لیا گیا. اب ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کس طرح تبدیل ہوگی؟ آنے والے دن کیسے جا رہے ہیں؟ اگر خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور پرماننٹلی ہم دیکھیں گے کہ خان صاحب جو ہیں وہ تحویل میں ہیں نیب کی، تو پھر اس کے بعد سیاسی سچویشن کیا ہوگی مبشر صاحب؟ میرا خیال ہے کہ عوام کو انتظار تھا کہ جو فیصلہ محفوظ ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جیسے ہی وہ آیا ہے تو انہوں نے عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کو قانونی قرار دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب مقدمہ چلے گا اور ان کو صبح ریمانڈ کے لیے بھی پیش کیا جائے گا. تو ایک سلسلہ جو ہوتا ہے عدالتی کارروائی کا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی طرف سلسلہ چل پڑے گا. ان کی فوری طور پر رہائی یا ضمانت نظر نہیں آ رہی. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو عوامی سطح پہ جو احتجاج ہو رہا ہے وہ ہمیں اچانک اور ایک دم تھمتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ میرا خیال ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے یا کنٹینیو رہے گا. لہٰذا یہ بہتر حالات کی طرف جو ہے وہ نہیں جا رہا. پہلے ہی ملک جو ہے وہ عدم سیاسی استحکام کا شکار ہے. معاشی طور پر ہمارے لیے بہت گہرے سگنل جو ہیں وہ آج بھی موڈیز نے جاری کیے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ پھر بھی ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ صبح کا جو دن نکلے گا تو پاکستان کی اکانومی کے لیے سب سے زیادہ برا ہوگا، اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ کو تشویش ہونی چاہیے کہ جب اس طرح کی سچویشن میں ہم پہلے ہی موجود تھے، اس طرح کی سچویشن میں ہم جا رہے تھے. الیکشن نہ ہونا وہ ایک علیحدہ بات ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو ان کی نیگوشیشن بھی ہو رہی تھی. لیکن اتنی بڑی ایکٹیویٹی کرنے کے بعد میرا خیال ہے کہ اکنامکلی پاکستان کے لیے مشکل ترین وقت کا آغاز ہو گیا ہے. اور جو قلت ہے اس وقت اشیاء کی وہ بھی عروج پہ ہے. تو لہٰذا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دانشمندانہ قسم کا فیصلہ نہیں ہے کہ اگر خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ جس ٹائمنگ پہ کی جا رہی ہے، یہ ٹائمنگ بڑی جو ہے وہ پہلے ہی پاکستان کے لیے بڑی خطرناک ہے. اور ابھی ہمارے ملک کا یہ ٹائمنگ ڈیسائیڈڈ تھی کہ 14 مئی کی جو سماعت ہے یا 14 مئی کو جو الیکشن ہونے ہیں وہ ڈیلے ہو جائیں اور پھر فوکس جو ہے وہ خان صاحب کی گرفتاری کے اوپر چلا جائے؟ دیکھیں ایک بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ سے استدعائی کرے گی پھر گورنمنٹ کہ جی حالات خراب ہو گئے، ہم الیکشن کنڈکٹ نہیں کرا سکتے. لیکن یہ بات تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا کہ ہم اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو لہٰذا اس کے بعد یہ سچویشن کرنے کا مقصد مجھے یہی نظر آتا ہے کہ اتنی زیادہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو جائے گی کہ الیکشن کو کنڈکٹ کرانے کے لیے مشکلات نظر آ رہی ہیں، اور لہٰذا اس کے لیے ہم اس کو پوسٹ پون کرنے کی استدعا کریں. ہے پھر مبشر صاحب سپریم کورٹ تو کہہ چکا ہے 14 مئی کو ہم نے الیکشن کروانے. دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے نا وہ تو میرا خیال ہے اس وقت اس معاملے میں حرکت میں آ سکتا ہے جب 14 تاریخ کو اگر الیکشن نہ کروائے گے تو پھر وہ پوچھ سکتا ہے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جو پہلے حالات اگر اتنے زیادہ بگڑ جاتے ہیں تو پھر گورنمنٹ یقیناً سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی کہ ہمیں جو ہے نا اس ایسی سچویشن میں الیکشن کروانے ہمارے لیے دشوار ہیں. تو یہ ایک مجھے تو یہی چیز نظر آتی ہے کہ الیکشن کو پوسٹ پون کرانے کا حکومت کے پاس ایک یہی راستہ رہ گیا تھا کہ جس سے ملک کے اندر افراتفری بڑھ جائے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس الیکشن کو پوسٹ پون کرانے میں کامیاب ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. مسرت صاحبہ کا رخ کر لیتے ہیں. مسرت صاحبہ، پی ڈی ایم کی جانب سے یہ بارہا کہہ دیا گیا ہے کہ پہلے ہم بجٹ پیش کریں گے، اس کے بعد پھر جو ہے ہم الیکشن کی ڈیٹ کی طرف جائیں گے. معاملات کیا ہیں؟ بجٹ تو مئی میں بھی پیش ہو سکتا ہے، آخر ہم جون جولائی کا ویٹ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں دراصل یہ ہے، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ میں نہ مانوں والی ضد ہونی چاہیے خان صاحب کی. اول تو پہلے یہ پوچھا جائے ان سے، جب آپ کے پاس پنجاب اور کے پی کے اندر گورنمنٹ تھی تو آپ نے قبل از وقت جو ہے نا اسمبلی کو ڈیزالو کیوں کیا؟ ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ جی قانونی طور پر اور ہمیں ویسے اپنے ملک کی اور قوم کی اور عوام کی خدمت کرنی ہے، تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اسمبلی قبل از وقت توڑ دیں؟ اور آپ منتخب اگر نمائندے تھے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا، آپ اتنے خیر خواہ تھے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح سے 2018 کا جو الیکشن ہے
उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं, और क्यों ना उठाई जाए, वो था ही इलेक्शन गलत। और इसी तरह से दो जो है ना सूबों के अंदर, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट आती, तो उसकी गवर्नमेंट के होते हुए अगर इलेक्शन होते हैं तो वो यकीनी सी बात है असरअंदाज जरूर होते हैं। तो मैं नहीं समझती कि जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है वो कह रही है कि नेगोशिएशन होना चाहिए, लेकिन खान साहब जो है ना, नहीं जी मैं इनसे बात नहीं करूंगा, बात करूंगा बिल्कुल किसी ठीक है, इलेक्शन के लिए बिल्कुल बात ठीक है। मैं करूंगा। अपनी टीम से दरख्वास्त करूंगी कि साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को जो है वो टेलीफोन लाइन पे लेने की कोशिश करें। जी मुसर्रत साहिबा, आप कंटिन्यू करें। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से टेबल टॉक होनी चाहिए, वो उस पर खान साहब शायद पहले कोई कायल नहीं हो रहे थे, और जब हुए तब भी वो, देखिए जब बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है, तो खान साहब बगैर सोचे समझे एलिगेशन लगाने के मास्टरमाइंड है। वो इदारों को छोड़ के किसी शख्सियत पर भी पहले देखें, कहने लगे कि जी अमेरिका के अंदर साजिश हुई, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अमेरिका के अंदर साजिश नहीं हो रही, ये बिलावल हाउस के अंदर साजिश हुई। फिर कहने लगे बगैर किसी उसके तवज्जुह से कि जी मुझे आसिफ अली जरदारी साहब पे उन्होंने जो है ना मेरे को चेयरमैन पे इल्जाम लगा दिया कि जी वो मुझे पैसे के एवज या किसी न किसी के थ्रू मरवाना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि मुझे जो है ना पीडीएम की गवर्नमेंट मरवाना चाहती है, कभी वो किसी इदारे का नाम ले लेते हैं। तो मैं समझती हूँ कि उन्हें जो है ना फैसले बहुत अच्छे लेने चाहिए। कोई किसी को नहीं मारता, जब मौत आएगी तो रब ही मारेगा, किसी बंदे से खौफ इंसान को नहीं होना चाहिए। लेकिन मुसर्रत साहिबा, अगर इंडिकेशन पहले ही मौजूद हो, या इंडिकेशन पहले ही आपको फील हो कि यार इससे मुझे डाउट है, शक है, तो फिर आप कह सकते हैं ना मीडिया पे आके। देखिए इंडिकेशन, देखिए मैं बताऊं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जब मुल्क में तशरीफ लाई तो वो भी कहती थी, और उन्हें इल्म था कि मुझ पे हमला हो सकता है, लेकिन उन्होंने अवाम की खातिर इस चीज की परवाह नहीं की। और अगर हम यही कहते रहे कि शहीद बाबा हमारे नहीं, तो खान साहब भी तो मुल्क छोड़ के नहीं गए ना मुसर्रत साहिबा, वो भी यही मौजूद है। बेनजीर भुट्टो साहिबा सियासत छोड़ देंगी। मेरी बीबी का अकलौता बेटा जो है ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, हम कहेंगे जी वो सियासत में नहीं आएंगे, आवाम की खिदमत नहीं करेंगे, तो ये डर और खौफ अगर खान साहब को है तो सियासत करनी ही नहीं चाहिए, फिर घर में बैठ जाए। बिल्कुल ठीक है, मुबशिर साहब का रुख कर लेते हैं। इमरान इस्माइल साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। जी मेहरबानी। इमरान साहब बताइएगा, आज खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, नैब केस पे जो है वो उनकी गिरफ्तारी हुई है, साथ ही साथ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे मौजूद थे, वहां उनका बायोमेट्रिक चल रहा था, और फिर हमने देखा कि रेंजर्स ने शीशे तोड़ दिए और खान साहब को गिरफ्तार कर लिया। क्या ये गिरफ्तारी इसलिए हुई थी ताकि खान साहब इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर सके और उन्हें नाअहल कर दिया जाए आने वाले इलेक्शन में? आसान अल्फाजों में कहा जा सकता है कि उन्हें माइनस किया जा रहा था। देखिए, आज जिस तरह से खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई वो इंतहाई एक बेहुदा तरीका था। एक सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर रेड करके और वो शीशे तोड़ के लोगों को जख्मी करके मार दाड़ करके वहां से खान साहब को ले गए और वो शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इमरान खान साहब ने सुबह ही बयान दिया था कि अगर कोई गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कितनी पुलिस रेंजर लाने की जरूरत नहीं है, अरेस्ट वारंट दिखाएं और मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसको उन्होंने छोड़ के ये अपनाया, और उसके बाद से अवाम का गम गुस्सा आपके देखने में मिल रहा है कि किस तरह से किस शिद्दत के साथ अवाम इसका इजहार कर रहे हैं। और ये कोई नहीं कह सकता कि कोई ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया, ये ऑर्गेनिक है, लोग खुद से निकले हैं, लोगों ने अवाम ने अपना रास्ता बनाया है। हमने मुसलसल सुबह से ये तलकीन करी हमारी लीडरशिप के जी इसको जो भी एहतजाज आप कर रहे हैं बेशक आपका हक है, लेकिन आप इसको पुरअमन रखें। तो लेकिन जब अवाम निकलती है, मॉब निकलता है, तो फिर वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, अपने तरीका कार तैयार करते हैं। अच्छा इमरान साहब, मुझे ये भी बताइएगा, कल प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई थी ISPR की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा था कि खान साहब के इल्जामात जो हैं वो बेबुनियाद हैं, अफसोसनाक है। फिर उसके बाद खान साहब का भी रद्द अमल आया कि मुझ पर वजीराबाद पे कातिलाना हमला हुआ, मेरी हुकूमत थी, मैं FIR नहीं कटवा सका, जबकि मैं इस मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ। उसके बाद आज जब नैब केस में खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, कहीं ये उसका रद्द अमल या उसका रिएक्शन तो नहीं था?
मैं वसूख से कह नहीं सकता, कोई ऐसी इतला तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये काफी अरसे से कोशिशें हो रही हैं पीडीएम की हुकूमत की तरफ से कि जो बार बार हम सुनते हैं मरीम नवाज कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है इसका वो इजहार करेंगे बरमला के जी? इस तरह नवाज शरीफ को अरेस्ट किया गया था, इमरान खान को भी किया जाए, हालांकि नवाज शरीफ ने अरबों की करप्शन की, इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसके लिए वो चाहते नहीं कि इमरान खान को कोर्ट के अंदर से तोड़ फोड़ के, कोर्ट की बेइज्जती करके, आइन की धज्जियां उड़ाने के बाद उसको अरेस्ट किया जाए। इमरान खान का तो मुवाजना बनता ही नहीं है नवाज शरीफ से किसी सूरत जी। लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे किस तरह उसको? अच्छा इमरान साहब, दफा 144 नाफिज कर दी गई है पंजाब में, इस्लामाबाद में जलसे जुलूस पे पाबंदी लगा दी गई है। क्या समझते हैं आप कि नून लीग को डर है, खौफ है कि खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब जो है उनके कारकुन भरपूर एहतजाज करेंगे? और ये भी बताइएगा कि अगला लाएअमल क्या है आप लोगों का? ये अवाम का रास्ता नहीं रोक सकते इस तरह। अगले लाएअमल का ऐलान तो हम अभी कर देंगे थोड़ी देर में, हमारी मीटिंग जारी है, अभी ऐलान हो जाएगा। बट मैं आपको ये बता दूं कि अवाम, इतना प्रेशर है अवाम का हमारे ऊपर, इतना लोग हमें प्रेशर दे रहे हैं कि जी नहीं बाहर निकलने की कॉल दें, कोई बड़ी कॉल दें, और इस वक्त हमारी लीडरशिप सर जोड़कर बैठी है और जल्द वो कोई कॉल दें। तो इमरान साहब क्या लगता है कोई बड़ा एहतजाज, वही कंटेनर वाली सियासत उसकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए हम तो पुरअमन लोग हैं, हमारी पुरअमन एहतजाज होती है। हमारे पास अवाम से रब्ता करने के अलावा दूसरा रास्ता है नहीं कोई। या तो हम अपने अल्लाह से मांगते हैं, या अवाम से मांगते हैं, या हम अपनी कोर्टों के पास जाते हैं अगर कोई लीगल मैटर्स होते हैं तो हमारे पास से चौथा रास्ता कोई है नहीं। ना तशद्दुद का हमारे पास रास्ता है, ना और कोई हमारे पास रास्ता है, ना हमें चाहिए। तो इंशाल्लाह हम अपनी अवाम के पास ही जाएंगे, उनके साथ ही मिलकर जद्दोजहद को और तेज करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि इमरान खान के साथ, तरीक इंसाफ के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है, अवाम के ऊपर ये चोरों को मुसल्लत करके जुल्म किया जा रहा है। इस जुल्म से छुटकारा तो हमने हासिल करना है। अच्छा इमरान साहब, आज राना सनाउल्लाह ने कहा कि खान साहब जो है वो मुल्क दुश्मन कुव्वतों के साथ मिलके मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं तो नहीं समझ सकी, अगर आप समझ सकें तो मुझे बताइएगा कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जिसके बारे में राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं? ये तो राना सनाउल्लाह को खुद भी नहीं पता। क्या ये बात तो बस खाली हाँ, ये तो खाली बोलने की बात है। वो तो बस उनको बोलना है, वो बोलते रहते हैं। उनको खुद नहीं पता कि वो क्या बात कर रहे हैं। उनके मोस्ट स्टेटमेंट जो है दे मेक नो सेंस। वो तो बस कुछ खलाई मखलूक की तरह बात कर रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा अब होने क्या जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इंतखाबात होंगे, 14 मई का कहा था कि इंतखाबात होंगे, खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब लगता नहीं है कि 14 मई को जो है वो इलेक्शन होंगे। पीडीएम बज़िद हो चुकी है। इमरान इस्माइल साहब, अब क्या होने जा रहा है? देखिए, सारा खौफ ही इलेक्शन का है, ये सारा फसाद और झगड़ा ही इलेक्शन का है, क्योंकि इलेक्शन से भाग रहे हैं जी। और ये नहीं चाहते कि इंतखाबात की तरह हो, क्योंकि इन्हें पता है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की मकबूलियत की बुलंदियों पर इस वक्त इमरान खान है, उसको हराना तो मुमकिन ही नहीं है। तो लिहाजा ये उसके लिए सारे हरबे और चीजें इस्तेमाल करें, लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब इनको अखबारों से घसीट के बाहर लाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपके वक्त का। मुसर्रत साहिबा, आपने हमारी गुफ्तगू यकीनन सुनी होगी। इमरान इस्माइल साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमें खुद समझ नहीं आता राना सनाउल्लाह क्या कुछ कहते रहते हैं और पीडीएम जो है वो झूठे मुकदमात, ये इल्ज़ामात जो कह ले वो बना रही है खान साहब पे, और वो पार्लियामेंट आएंगे और फिर ऐवानों से जो है वो सबको सफाया कर देंगे, सबको निकाल देंगे। मुसर्रत साहिबा, देखिए खतीजा, बात दरअसल ये है, कौन किसको निकालता है ये तो अवाम बेहतर फैसला देगी, और मैं नहीं समझती। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह इमरान इस्माइल ने इतना बड़ा झूठ बोला कि जी हम बड़े पुरअमन लोग हैं, आपने पुरअमन रहने वाले लोगों का हाल तो देख लिया कि वो जो है ना कराची में जो उन्होंने जलाओ घराओ किया वो भी आपने देख लिया। और सबसे बड़ी बात, सबसे जो मैं जिसको समझती हूँ कि इंतहाई घटिया बात, सरगोदा के अंदर जो है ना एक चौक बना हुआ है, उसके अंदर हमारे शोधा की जिन्होंने देखे कुर्बानियां दी है उनकी जो है ना तस्वीर लगी हुई है, और उनको जलाना, और पीपल्स कराची के अंदर पीपल बस को जलाना, रेंजर्स की चौकी को जलाना, पुलिस मोबाइल जलाना, और अभी एक मतलब इस तरह की हरकतें करना, वो कहाँ से पुरअमन हो सकते हैं? मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि जहाँ एक हसास इदारे के अंदर घुस जाना। अच्छा, और वहाँ से ऐसे भी तो लिया जा सकता है कि खान साहब ने कॉल नहीं दी कि आप एहतजाज करें, आप प्रोटेस्ट करें। बड़ी माजरत के साथ इनकी तमाम लीडरशिप की वीडियोस मौजूद है
ट्विटर से मौजूद है कि आप लोग आए, आप एहतजाज करें, आप निकलें। अब मुझे बताएं कि खान साहब को मार दिया जाएगा, उसके लिए निकले, रेड लाइन है खान साहब, उसके लिए निकले। आर्मी के लिए इतने बड़े बड़े जो है ना गलत बातें की गई और दुश्मनों को उन्होंने जो है ना खुश करने के लिए। मरियम साहिबा ने भी तो जलसे में बड़ी फुटेजेस दिखाई थी साबिक ISI चीफ की, मुशर्रफ साहिबा, वो भी तो फिर गलत है। देखिए इस तरह से अगर जो हरकतें करेंगे तो फिर जो है ना, मैं कहती हूँ कि ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर खुदा ना खास्ता सिविल वॉर हो, और मैं नहीं समझती हूँ कि अवाम को जो है ना इस तरह का रिएक्ट करना चाहिए। इसके अंदर इस तरह की हरकतों के अंदर दुश्मन जो है ना गलत फायदा उठा सकता है। इस तरह की हरकतें कम से कम अवामी लोगों को नहीं देनी चाहिए। वैसे ये अवामी है कब कि मैं इनको कहूँ कि अवामी लीडर रहेंगे। अच्छा, प्रोटेस्ट के दौरान मुशर्रफ साहिबा MP अदील अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया, अली जैदी को गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसी खबरें भी मौसूल हो रही हैं। देखिए मेरी बात सुने, जब आप कानून को हाथ में लेंगे तो आप मुकद्दस गाय तो नहीं है कि आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। ये कौन सी बात हुई? अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो आप कहेंगे क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? जब आप अपने साथ गुंडे लाएंगे, जलाओ घेराव करेंगे शहर का, तो आपका कानून तो हरकत में आएगा ना खदीजा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही कहा आपने मुशर्रफ साहिबा। मुबशिर साहब का रुख कर लेते हैं। मुबशिर साहब क्या कहेंगे? आज कराची के वाक़े के ऊपर बात कर लेते हैं। अली जैदी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, अदील अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या वाकई वो कुछ ऐसा कर रहे थे, बसेस जला रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे जिस पर गिरफ्तारी बनती थी? ठीक है, दोबारा कोशिश करेंगे, मुशर्रफ साहिबा की जानिब जाएंगे। मुशर्रफ साहिबा, अब बजट पेश होगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस होगी। पहले PDM अपना मनपसंद बजट जो है वो पेश कर देगी, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्शन हो रहे हैं, यानी मुल्क में जो है वो आम इंतखाबात हो रहे हैं। देखिए खतीजा, कोई ऐसा नहीं है कि मनपसंद बजट या कुछ। देखिए सिटिंग गवर्नमेंट कोई भी होती है, बजट उन्होंने पेश करना होता है। मुझे और ये क्यों इस चीज से खाइफ है कि बजट पेश कर दिया तो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा। देखिए बजट इस गवर्नमेंट का कानूनी राइट है, अगर दे रहे हैं, और ये किस तरह कह सकते हैं कि वक्त से पहले दे दें, आप बाद में दे दें, तो मिनी बजट तो नहीं लाया जा सकता ना कि हर दफा मिनी बजट ला दें और इस तरह कर ले। तो ये हर वो चीज नहीं होती जो खान साहब ने कह दिया वो पूरा होगा। जो कानून कहता है, जो आइन कहता है, उसके दायरा कार के अंदर जो है ना फैसले होते हैं। किसी की डिक्टेशन से कुछ नहीं होता कि आप जो डिक्टेट करेंगे वो होगा। नहीं, मैं नहीं समझती ऐसा होना चाहिए। जी मुशर्रफ साहब, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। अच्छा, एक यहाँ पे मैं कोट करूंगी कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम किसी की जिद पूरी नहीं कर सकते। इमरान खान साहब जिद कर रहे हैं कि असेंबली तहलील हो गई है, इलेक्शन करा दें, किसी लाडले की जो है वो हम जिद पूरी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इनको छोड़ भी दें, स्टेटमेंट को छोड़ भी दें, खान साहब को छोड़ भी दें, तो आइन में लिखा है कि 90 डेज में जो है वो इंतखाबात होने चाहिए। इसे कैसे देखती हैं आप? नहीं देखिए, हमने तो नहीं कहा, हमने तो अपने आपने नहीं कहा, बिल्कुल आपने नहीं कहा, आपकी जमात ने ये नहीं कहा, ये बिल्कुल सही बात है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। देखिए मैं राना सनाउल्लाह की जो है ना रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ये तो आप उनकी जमात के किसी लेकिन मैं समझती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी एक दिन नहीं कहा कि नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, और हम तो तैयार है। आज हो जाए, कल हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। अच्छा। और हमने अपने कैंडिडेट्स को टिकट भी दिए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिए। अच्छा मुशर्रफ साहिबा, जब पीपल्स पार्टी से ये सवाल होता है, क्योंकि मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ, लेकिन जब भी पीपल्स पार्टी से सवाल होता है तो वो कहते हैं कि नून लीग का स्टैंड है, हमारा स्टैंड नहीं है। जिस पे फिर मेरा सवाल ये होता है कि जब PTI से मुज़ाकरात हो रहे थे तो क्या उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नहीं थे, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है? सुप्रीम कोर्ट पर जब समाअत हो रही थी तो फारूक एशनाई जो हैं वो समाअत के दलाइल पेश नहीं कर रहे थे, और जब नून लीग हुकूमत में आई तो वजीर खारजा जो है वो बिलावल भुट्टो साहब नहीं थे। तो फिर ये तो इत्तेहादी हुकूमत हो गई ना, खड़े तो सब एक ही बीच में। देखिए मैंने कब कहा कि हम इत्तेहादी नहीं है सॉरी, बिल्कुल जरूर है। देखिए मेन है वजीर दाखिला है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, तो ये इनके डिसीजन होते हैं। अगर वजीर दाखिला कुछ कह रहा है या हमसे पूछा जाता है, तमाम मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने तमाम पार्टी को बुलाया, जाहिर सी बात है फारूक एशनाई जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉयर हैं, और अगर उन्होंने वहां पे पेशरफ की है तो मैं तो गलत नहीं कहती। अगर जहां तक आपने कहा मुज़ाकरात के लिए, तो यकीन करें मुज़ाकरात की टीम तो बाद में बनी, सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मेरे चेयरमैन ने टीम तश्कील ले दी की थी, और
بتایا گیا تھا، اپنی ٹیم کو کہا گیا تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز سے جو ہے نا آپ رابطے کریں تاکہ جو ہے نا کلیش نہ ہو، مل بیٹھ کر فیصلہ کیا جا سکے نا. تو ہم نہیں سمجھتے کہ دیکھیں جو خان صاحب کہیں کہ نہیں جی جس ڈیٹ کو میں کہہ رہا ہوں اس ڈیٹ کو الیکشن ہونا چاہیے، جس ڈیٹ کو آپ لوگ سب مل کر بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں اس پہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر حرف آخر خان صاحب نہیں ہوتے. جب سب کے لوگ موجود بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پہنچنا لازم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مسرت صاحبہ آپ کے وقت کا. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کی صبح جو ہے وہ کیا رنگ لائے گی. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.